Hello students, I am Ashish Tripathi, computer teacher in Mount Etna GE School Jhansi. Today, first of all, I want to tell you how are you? Are you fine? Are you sanitized? Are you staying at your home? Please follow all the rules. As much as you are staying in your home, as much as you are sanitized, you are safe from the COVID-19. Because there is no yet there is no medicine for the COVID-19. So please be sanitized and stay at home till the government has not given the instructions. And use this lockdown period for your study purpose. We all the teachers are providing you the videos, lecture, the online classes. I know all of you are studying. Your examinations we are also taking. But use this lockdown period for the study purpose, nothing else. Now today I am going to present you the chapter 6, internet content sharing. This chapter I will also repeat on Saturday or Sunday whenever my next turn is there. Then I will also repeat this chapter. Internet content sharing का मतलब होता है कि what you are very much familiar with the internet. कि internet is the world wide web, www. It is a network that is spread all over the world. पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर किस जगह पर सब जगह फैला हुआ है. You know, using internet you can download or upload, you can do whatever you want to do. आज इंटरनेट से you are preparing your projects, you are preparing this, you are preparing each and every, you are purchasing from market, you are staying at home and you are purchasing from market, if you want to payment for someone directly by the help of internet, you are paying. You also know about the email, electronic mail. It is the fastest communication medium to send anyone the information. So content sharing का मतलब यह हो जाता है कि whatever the data we are sharing on the internet. Email is the electronic means of communication in addition to internet connectivity. One need a login ID with an email service provider and a password to send and receive the emails. Email वो electronic means of communication है. By the help of that fastest means of communication, उसके लिए you need a service provider, a password, a login ID and send. सबसे पहले लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा, देन पासवर्ड, फिर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, यानी जैसे आप जीमेल से कर रहे हो, हॉटमेल से कर रहे हो, किससे भी कर रहे हो. क्रिएट एंड यूज अ मेलिंग लिस्ट ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन. अब आपको मेलिंग लिस्ट बनानी है फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 39 स्टूडेंट इन क्लास, देयर आर 30 स्टूडेंट इन क्लास 7. तो all the 30 स्टूडेंट वी हैव टू सेंड द मैसेज. तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार हम क्या करेंगे, उस पर बार बार हम क्लिक करेंगे और बार बार एक कॉन्टैक्ट उठाएंगे, बार बार भेजते हैं. अब सबको कॉमन मेल भेजना है, तो हमने क्या किया, वी आर ग्रुपिंग देम इन अ मेलिंग लिस्ट. तो हमने एक ग्रुप में मैसेज डाल दिया, जैसे ग्रेड 7 में मैसेज डाल देते, सबको मिल जाता है. कस्टमाइज योर ईमेल अकाउंट्स. कस्टमाइज योर ईमेल अकाउंट्स का मतलब होता है कि आपका ईमेल अकाउंट आपने बना लिया, उस ईमेल अकाउंट में नंबर ऑफ द मेल्स आर कमिंग. इन ईमेल अकाउंट नंबर ऑफ द मेल्स आर कमिंग. अब उन मेल्स में कौन सी मेल्स आपके लिए जरूरी है, कौन सी नहीं जरूरी है, कौन सी आपकी डंप है मेल्स जो कि अननेसरी आ रही है, उन सब को रोकना और उन सब पर काम करना और आपके लिए प्रॉपर ईमेल सर्विसेज बना देना. दैट इज नेक्स्ट इज मैनेजिंग कॉन्टैक्ट. मैनेजिंग कॉन्टैक्ट का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ ईमेल एड्रेस कैन बी डन इन मैनी ईमेल एप्लीकेशन. द ऑप्शन इज यूजुअल अवेलेबल. कॉन्टैक्ट के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप सारे के सारे ईमेल एड्रेसेस को ग्रुप कर सकते हो. मान लो आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और उसके सारे एम्प्लॉयज के कॉमन मैसेज जाता है टाइम टू टाइम ईमेल से. तो आपने क्या किया, उसे एक कॉन्टैक्ट के अंदर ग्रुप कर दिया जाता है. और जिनको आप बार बार कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, गो एंड मोस्ट कॉन्टैक्टेड. सो अगेन एंड अगेन ये आपका टाइम सेव करता है. Now when you are opening the email before sending you, तो क्या करता है, उसमें आप अटैचमेंट भी कर सकते हो. अटैचमेंट का मतलब होता है if you want to attach a file, एक पर्टिकुलर फाइल को अटैच करना है, आपने अटैच पे क्लिक किया, वहां से फाइल उठाई और उसको फाइल को लिंक कर दिया. whenever you are sending, तो वहां पे आपने उसका
एड्रेस डाला और उसे सेंड करना स्टार्ट कर दिया। अब सीसी और इसके अलावा ईमेल को जब आप टाइप करते हो तो ऑल्सो गिविंग द स्पेलिंग एरर्स टू करेक्ट, मतलब अगर आपने रॉन्ग स्पेलिंग दी है तो उसके लिए प्रॉपर स्पेलिंग एरर दी। सीसी फील्ड 2 का मतलब होता है टू हुम यू आर सेंडिंग। सीसी मीन एक और कार्बन कॉपी, बीसीसी मीन दूसरे का कार्बन कॉपी। सो बेस्ट इट कि हम ग्रुप अंडर डाल दें। एक ग्रुप बना लिया 12-15 लोगों का, 12 to 15 पर्सन, एंड यू आर क्लिकिंग ऑन ग्रुप, तो इट विल सेंड द ईमेल टू द पर्टिकुलर ग्रुप। यू कैन ऑल्सो, अब मान लो आपको प्रीवियस ईमेल सर्च करनी है इंटरनेट पर, तो यू कैन ऑल्सो सर्च। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्च, वन इज द सर्च, सेकेंड वन इज द एडवांस सर्च। सर्च ईमेल एप्लीकेशन इज लाइक द सर्च ऑन इंजन। जैसे सर्च इंजन है ना आपके गूगल और इन सब, जहाँ पे कोई भी चीज सर्च कर देना तो वो पर्टिकुलर क्वेरी आपने इनपुट की उससे रिलेटेड सारे रिजल्ट दे देगा। आपने लिखा सचिन तेंदुलकर, तो इट विल गिव ऑल द रिजल्ट रिगार्डिंग द सचिन तेंदुलकर। बट इफ एडवांस सर्च मीन्स यू आर गिविंग ए स्पेसिफिकेशन, सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ द क्रिकेट फ्रॉम इंडिया, तो इट विल गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सचिन तेंदुलकर हु इज फ्रॉम द इंडिया। नाउ ईमेल एप्लीकेशन में कुछ सेटिंग्स भी होती है, मतलब कि उनके सेटिंग ऑप्शन में चले जाइए, उसमें आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज है, ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिफॉल्ट सेटिंग, बेटर इट इज डिफॉल्ट सेटिंग ले लो, बहुत सारी होती है डिफॉल्ट सेटिंग। अब यू नीड अ पासवर्ड। पासवर्ड का मतलब आता है क्या, एक सीक्रेट कोड जो केवल आप ही को पता है। जब आप उस सीक्रेट कोड को एंटर करेंगे तो आप अपने लॉगिन आईडी में इनपुट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर। चेक योर ईमेल्स रेगुलरली, दिस हेल्प यू टू कट। आप पासवर्ड आपने लगा दिया, पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए, पासवर्ड में भी क्वालिटीज होनी चाहिए। पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टाइम पे वो क्या नाम है कोई भी आपके पासवर्ड को ओपन कर ले। पासवर्ड पीरियडिकली टाइम पे चेंज होना चाहिए। अब चेक योर ईमेल रेगुलरली, अपनी ईमेल्स को रेगुलरली चेक कीजिए। क्यों, पता नहीं किससे रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन, तो दिन भर में एक बार आपका ईमेल अकाउंट चेक हो जाना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 टाइम अ डे। अब वेबसाइट, अब यूजिंग इंटरनेट कंटेंट शेयरिंग है, तो हम अगर वेबसाइट बना करके क्रिएट भी कर सकते हैं। वी कैन अपलोड अवर डेटा एंड शेयरिंग फाइल। देयर आर 2 थिंग्स, वन इज अपलोडिंग, सेकेंड वन इज डाउनलोडिंग। अपलोडिंग का मतलब होता है वॉट एवर द डेटा यू वांट टू इंसर्ट ऑन इट, आप उस डेटा पर, उस पर जो भी डेटा ओपन करना चाहते हैं। और डाउनलोडिंग का मतलब होता है यू आर टू टेक द डेटा फ्रॉम द वेबसाइट, जैसे यूट्यूब, ऑडियो वीडियो, पिकासा, फ्लिकर फॉर द फोटोग्राफ, स्लाइड शेयर फॉर द प्रेजेंटेशन। तो ये बनी बनाई वेबसाइट है। गूगल डॉक्स, गूगल शीट, विकीपीडिया, तो गूगल डॉक में गूगल डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, शीट्स में, विकीपीडिया में आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो दीज आर द प्री प्रिपेयर वेबसाइट दैट इज अवेलेबल। हाउ डू वी आप किसी भी वेबसाइट को यूज करना है, याहू पर चले जाइए, गूगल पर चले जाइए, वहां पर जाकर उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम डाल दीजिए, दैट वेबसाइट विल बी ओपन। Now the next is the cloud computing. It is a technology that uses the internet remote server to maintain data and application. Cloud compute provide computation software, data access and storage service to user independent of their physical location. It allows user to use applications without installation and access their personal files from one computer with the internet access. Means cloud computing वो technology होती है आज की तारीख में इन टुडेज एरा कि आप कहीं पे भी आपने अपने लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए की स्पेस नेट पे सेव कर दिया। और ऑल ओवर वर्ल्ड में वेयर एवर यू आर, कोई भी मोबाइल आप लिए रहो, आप अपने उस क्लाउड कंप्यूटिंग में अपने इंटरनेट एड्रेस के थ्रू चले जाइए और जो भी डेटा, जो भी कॉन्टैक्ट, जो भी फोन नंबर, इवन आप रिमोट एरियाज में भी होंगे जहां पर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, तो उन रिमोट एरिया में अगर सर्वर अवेलेबल होगा तो इट विल प्रोवाइड विद द इंटरनेट। सो यू कैन सी कितने ज्यादा फायदे हैं। मतलब यूजिंग दैट आप कंप्यूटेशन, सॉफ्टवेयर, डेटा एक्सेस, स्टोरेज डिवाइसेस ऑन रिमोट एरियाज, रिमोट सर्वर्स, कहीं भी चले जाके विदाउट फिजिकल लोकेशन के आप अवेलेबल कर सकते हैं। मतलब जरूरत नहीं है कि आप हार्ड डिस्क साथ में लेके घूमें, सारी की सारा आप इंटरनेट पर चले जाएंगे और ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा। सो in this video you can learn what is content sharing on the internet, what is email, what is search and advanced search, what is cloud computing, what is 2VCC, मतलब ईमेल में क्या क्या फैसिलिटीज। इसके अलावा इंटरनेट पर वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते, डेटा कैसे शेयर कर सकते। यू आर रीडिंग दिस वन, नेक्स्ट टाइम आई विल ऑल्सो रिपीट दिस। थैंक यू।